last day of this training. Uh, the training is on innovations of MAP, medicinal therapeutic plants as the potential business venture. We have with us for this session Mr. Wasim Ahad. He is the District Nodal Officer of JKEDI. He has an experience of 13 years. By educational background is Masters in Finance and Control. He has also ended in management and he is working in the Institute of JKEDI. And he has an expertise in entrepreneurship. So throughout these 6 days, you heard about that what are the different avenues, in which sector, how much money you can make, and how you can, which sector you can take up, whether cultivation, whether processing or value addition, or its marketing or trading, which crop gives us how much benefit, and which has the scope. You went all through this, but at the end of the day, the importance is how you put into practice. And for that, you need to know, to be an entrepreneur, you need to know what are the available schemes with our Entrepreneurship Development Institute, and how can they help you in building an enterprise. So for that reason, on the last day, we have invited our esteemed guest, and I welcome him to this session, and I expect that we will maintain he will maintain that type of cooperation, and you can say that relationship with you also, and I expect from you also that you will also maintain that relationship, because you also want to get into. There are few of our entrepreneurs are very serious in getting into this business, and few are already in it. So they actually need that hand holding, that which schemes they can go for and how can they benefit from this entrepreneurship. So for this session, I welcome you and I invite you for this lecture. Assalamu alaikum, good morning. Before inviting our expert today, I just want to get some feedback from you. Because today's expert is so important for us. इसको कहते हैं ना कि that जब ये सारा प्रोग्राम जब culminate हो जाएगा, then वो cap जो होती है, so it's just like that. तो feather in the cap. तो क्योंकि आप लोगों से इनको input चाहिए, we want कि आपने अभी तक तो हम आपको input दे रहे हैं, लेकिन you also have to do some basic exercise also. मैंने कोऑर्डिनेटर मैम को बताया था कि he will आपके ग्रुप्स बनाएंगे, 4-5 ग्रुप्स बनाएंगे based on your common interests. या जो जैसे हमारा एंटरप्रेन्योर कोई है, ऑलरेडी कोई कर रहा है, based on his expertise वो अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहे, you want to अपने साथ एक ग्रुप जो बनाना चाहे ताकि वो उसका जो एंटरप्राइज है वो कैसे बढ़ जाए और वो कैसे एड ऑन डिफरेंट चीज़ें उसमें हो जाए, या कोई नया ग्रुप भी बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप डिफरेंट एरिया से आए हैं तो डिफरेंट एरियाज का भी उसमें बड़ा ये रहेगा. जैसे हमारे शुपियन से कुछ आए हैं, अनंतनाग से हैं, श्रीनगर से हैं, गांधरबल से हैं, तो इसी तरह वो दैट विल ऐड टू कि उस एरिया में भी अगर वो ग्रुप काम करे तो एक बिजनेस प्लान जो मैंने आपको बताया था कि अपना बिजनेस प्लान बताइए आप बेस्ड ऑन जो आपने सीखा, जो इनपुट्स आपको मिले डिफरेंट एक्सपर्ट से, आप एक टेंटेटिव बिजनेस प्लान बनाएंगे कि किस एरिया में आपकी इंटरेस्ट है, कहाँ आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन में जाना चाहते हैं, बेसिक कुछ करना चाहते हैं, या ब्रांडिंग जो जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग करना चाहते हैं. तो ये सब चीज़ें आप मिलजुल के जो आपके जो कोऑर्डिनेटर मैडम जो है वो ग्रुप्स बनाएगी और उस ग्रुप का वो बिजनेस प्लान बनाएगी. अदरवाइज जो ट्रेनिंग होती है इससे क्या होता है दैट इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इट डजंट वो सर्व नहीं होता है. तो वो जो ग्रुप्स होंगे जो आप बिजनेस प्लान बनाएंगे वो डिस्कस विद आवर एक्सपर्ट्स आल्सो. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ताकि जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं एक तो उनका ओपिनियन ले लें, उनके इनपुट्स ले लें,
उनसे हम जैसे अभी हमारे पास वसीम साहब है, उनके डिपार्टमेंट से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, इसी तरह जिन को हमने इसके साथ जोड़ा है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उनसे आपको क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या मिलेगी, इसी तरह आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी, ताकि आप लॉन्च कुछ ना कुछ कर सके। अदरवाइज आप ट्रेनिंग करके घर जाके भूल जाएंगे 6 दिन के बाद, एंड अगेन यू विल कम फॉर अ डिफरेंट ट्रेनिंग, तो फिर वही सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो मैंने आपसे को पहले दिन ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक माइंड सेट बना लीजिए कि हमें हमारा जो टारगेट है, अगर हमें मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स में, क्योंकि आप लोगों को हमने चुना है बेस्ड ऑन योर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना, बेस्ड ऑन योर जो आप लोग कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट सेक्टर में, तो वो इंटरेस्ट, वो जज्बा देख के आपको हमने यहाँ पे लाया है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आप में से एक एडवांटेज है वसीम साहब इसमें, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, और इनमें डाइवर्स ग्रुप्स है, तो वो एक एडवांटेज हमें लग रहा है। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, वो करगिल का भी हमारे पास वो कैंडिडेट एक था, जम्मू का भी एक कैंडिडेट था, तो वो भी उसको भी हमने कोशिश की थी कि ताकि उनका भी हम जो है डिफरेंट एरियाज का एक्सपीरियंस लेके ये कुछ ना कुछ कर सके। तो वो आप आफ्टरनून सेशन में वो कर लीजिएगा, फीडबैक भी आपको वो भरना है, फॉर्म भी भरना है, फॉर्मेलिटी जो होगी, लेकिन जो आपका असली काम है जो अब स्टार्ट होगा, हमारा काम था आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्टीज और रिसोर्स पर्सन देना, वो कैसे आपको हेल्प करेगा। अब आपका काम है कि आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे। ट्रेनिंग करके घर में भूल जाना ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप हमें तंग कीजिए, आप हमें बार बार हमारे पास आइए, ताकि हम इससे बेटर आपके लिए कुछ और कर सके, ताकि इस फील्ड में एक जो राह है ना, जो आप लोग कह रहे हैं हम चुनेंगे, उस राह पे आप चल के एक टारगेट अचीव कर सके। बस यही मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, और मैं खैर मकदम करता हूँ वसीम साहब का केवीके गांधरबल में, एंड आई हैंड ओवर टू माइक टू हिम फॉर दिस सेशन। थैंक यू। डॉक्टर इशफाक साहब, डॉक्टर राफिया जी, participants of the program, good morning and अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अहद है और JKEDI जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उसका जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमारा गांधरबल है, उसका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ मैं। तो पिछले 1 साल से मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में काम कर रहा हूँ, जो मुझे आई एम हाईली थैंकफुल टू कश्मीर स्कॉस्ट फॉर गिविंग मी चांस टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, ताकि मैं आप तक जो हम आपको फैसिलिटीज़ एज JKEDI प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं और उन फैसिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू बेसिकली इंट्रोड्यूस माय इंस्टीट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आप में से कितने लोगों ने सुना है? ऑल ऑफ यू, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने नहीं भी सुना है, कुछ लोगों ने, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये क्रिएट किया है 1997 में, और जो हमारे रेगुलर ऑपरेशंस जो हमने स्टार्ट किए, वी स्टार्टेड दोज ऑपरेशंस इन 2004, ठीक है। और अभी वी हैव आवर एग्जिस्टेंस रीजनल लेवल पे इन कश्मीर रीजन। अगर हम बात करें तो वी हैव आवर हेडक्वार्टर्स इन पापोर, एंड अगर जम्मू की बात करें तो we have our headquarters in Bari Brahmana, Jammu. Or I was told कि we have a student from, we have a participant from Kargil also, so we have our existence in Ladakh region also, ठीक है। हमारा जो लद्दाख का main office है, that's in Leh, and we have a district center in Kargil also. So अभी we have presence across all the 20 districts of J&K. हर किसी district में हमारा एक district center तो है ही है। Okay, before I move on with the topic which has been assigned to me, so this is a picture. इस picture के साथ कितने लोग relate कर पाते हैं आप में से? सब? In fact, me also, मैं भी बहुत देर तक इस चीज़ के साथ relate करता रहा हूँ। इस picture के साथ, इस picture के साथ, ठीक है? तो देखा होगा आपने। So this is basically a picture taken outside पुरानी वाली जो SSRB की बिल्डिंग है, कुछ ऐसे सीन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
And in fact, before I start, I want to congratulate all of you कि आप लोगों ने ये कतार छोड़ के एक और कतार पकड़ ली है जो बिल्कुल बहुत अच्छी कतार है और जिस कतार में इतने सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। इस कतार में रहने से बेहतर वो कतार है जो आप लोगों ने पकड़ी हुई है क्यों बेहतर है, ठीक है? तो देयर इज अ फिनोमेनन कॉल्ड यूथ बल्ज। यूथ बल्ज आप लोग समझते हैं कोई आप में से? सो यूथ बल्ज दुनिया में एक फिनोमेनन है। अभी ये बोला जाता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट जो हमारी 66% पॉपुलेशन है जो वो यूथ पॉपुलेशन है। क्या है? यूथ पॉपुलेशन। अब यूथ कैसे हम डिफाइन करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नेशनल यूथ पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है, वो यूथ को डिफाइन करती है somebody who falls in the age group of 13 to 35। अब मैंने बोला कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो 66% है, ठीक है? 66% हमारी यूथ पॉपुलेशन है। सो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? 1.4 billion। कितनी पॉपुलेशन है? मैं आपके लिए ऐसे आसान कर देता हूं। if the population is 100, 66 of them are youth। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जो अब इंडिया में स्पेशल क्या चीज है? इंडिया में अगर हम देखेंगे 2010 में जो मीडियन एज थी पूरी पॉपुलेशन की, मीडियन एज थी 25.2 इयर्स, और वही उसी वक्त जो चाइना में जो मीडियन एज थी दैट वाज 34.5 इयर्स। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये जो एज है ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन which we have to face in the market। जब भी हम जॉब की बात करें, जब भी हम कंपटीशन की बात करें। इसी तरह से अगर हम J&K पे आ जाते हैं तो there was a survey which was conducted in 2022। उस सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि हमारे जो J&K में है 6.63 लाख यूथ, एजुकेटेड यूथ, दे आर सीकिंग जॉब्स, एजुकेटेड यूथ। ठीक है, ये समझ लेना। एंड यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड अ पॉइंट, दे आर दोज यूथ हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद DECCs। DECC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो लोग कितने थे जो जॉब सीख कर रहे थे? 6.63 lakhs। एंड उसी सर्वे में ये भी बताया गया कि इनमें से तकरीबन 10-15% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई छोटा मोटा काम, जो कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, तकरीबन 60-65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। तो 10-15% लोग इनमें से ऐसे हैं जो छोटे छोटे वेंचर्स, छोटी दुकानें चला रहे हैं, अपने बागों के साथ मशगूल हैं या कोई छोटे मोटे यूनिट्स चला रहे हैं। अब उसका मतलब ये है कि कुछ 5.63 लाख यूथ हमारे पास बचते हैं जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। ये एजुकेटेड यूथ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, और 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारी इस यूटी जो रादर अर्स्टवाइल स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 1.25 करोड़ थी। अभी हम थोड़ा सा अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 45 लाख ये पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, अभी हमारे पास है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। अच्छा, इसी सर्वे में ये बताया गया कि 15 से 29 इयर्स तक की जो एज ग्रुप में लोग फॉल करते हैं J&K में, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है? 18.3%, while as the national average is 6 point। थोड़ा सा मसला तो है ना कहीं प्रॉब्लम तो है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम क्या है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है क्या। थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा ड्राई स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं, आई नो इट्स बोरिंग, बट थोड़ा सा मैं आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, आप लोगों ने सही स्टेप लिया है।
ये सिनेरियो देख के। अच्छा, एक दो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये वो इदारा है जो इस यूटी में नॉन गेस्टेड कैडर के जो पोस्ट्स होते हैं वो रिक्रूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को है। अच्छा, 2016 से लेके 2020 तक जितने लोगों ने फॉर्म भरे, JKSSB collected 77 crore rupees as examination fee from those candidates. कितना? 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और most of them were post graduates, PhDs, graduate तो मिनिमम है ही, वो तो जरूरत ही है। ठीक है, ये सिनेरियो आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए कि हर साल हमारे जॉब मार्केट में कितने लोग ऐड होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी इस सुकॉस्ट की हम बात करें ना, every year we have pass outs from this university. Not only SCOST, we have pass outs from Kashmir University. We have around 6-7 universities in J&K operating now, right? We have colleges. हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हर साल हमारे इस क्यू में कितने लोग ऐड होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। सो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और सिनेरियो बताना चाहता हूं। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि हमारे इस यूटी में कितने सरकारी मुलाजिम हैं? कुछ आइडिया है? रफ आइडिया? 4.5 लाख है। कितने? 4.5 लाख। पॉपुलेशन कितनी है हमारी? मैंने बताया कुछ 1 करोड़ 45 लाख। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये पॉपुलेशन है हमारी, 4.5 लाख हमारे सरकारी मुलाजिम हैं। हमारी इस यूटी में जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अभी इट्स पिकिंग अप। हमारे पास अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी डेवलप हो रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, वी हैव अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल एस्टेट इन लासीपुरा। जम्मू की बात करें तो वी हैव अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल एस्टेट इन बरी ब्राह्मणा। और भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। वी हैव इंडस्ट्रियल एस्टेट इन गांधरबल। ठीक है, एक और भी बन रहा है गांधरबल में। तो लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी उतना पिकअप हुआ नहीं है। किसी भी इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही होती है। लेकिन ये जो हमारी यूटी है, इसमें जो मेजर एम्प्लॉयर है, मेजर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो कौन है? J&K गवर्नमेंट। 4.5 लाख। समझ लीजिए, मैंने बोला कि 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, एंड वी हैव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउ मेनी? 4.5 लाख। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? इट्स 10 टाइम्स देन J&K। कुछ 13 करोड़ है। ठीक है, और कैन यू गेस कि वहां पे सरकारी मुलाजिम कितने? इट्स सेम एज J&K। ओके, एंड अगर हम गुजरात की पॉपुलेशन ले लें तो गुजरात की पॉपुलेशन इज अराउंड कुछ 8 करोड़ है, एंड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर लेसर देन J&K। ठीक है, मैं ये पॉइंट क्यों आपको बता रहा हूं? यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप में से किसी ने इकोनॉमी पढ़ी होगी, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इनइलास्टिसिटी। ठीक है, तो सरकारी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट मुलाजमत है, इसमें इनइलास्टिसिटी आ चुकी है। ठीक है, इट कांट बी स्ट्रेच्ड फर्दर, इट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। सैचुरेशन। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो कैन यू नाउ टेल मी कि आप लोगों ने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है? बिल्कुल सही डिसीजन है ना? सही डिसीजन है। ठीक है, अच्छा, ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही है जो आप लोगों ने सोचा है करने का। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इनोवेशन। ठीक है, वही सॉल्यूशन ये है कि ये जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है,
ये कर्व करें हम थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा? One, you will create your own enterprises, then you will also employ people there. That will help in curbing unemployment, right? And that is why JEDI जो उस वक्त बनाया गया था, मेजर जो मकसद था EDI बनाने का वो यही था, to curb unemployment through the creation of enterprises. अच्छा मैंने आपको ये चीज बोली कि EDI started its operations in 2004, राइट? यही मैंने कहा ना। 2004 से लेके 2009 तक EDI क्या करता था? EDI used to conduct EDPs. EDP is a Entrepreneurship Development Program इस थे। और 2009 में एक उस चीज का एनालिसिस हुआ जो हमने ट्रेनिंग की थी सिंस 2004 to 2009। उस चीज का एनालिसिस ये हुआ, उसमें हमें ये पता चला कि 2009 तक जितने भी हम लोगों ने ट्रेन किए थे, लेस देन 3%। हम नेशनल एवरेज देखें, सक्सेस ऑफ स्टार्टअप्स वो 27% है। हर 100 स्टार्टअप्स में से सक्सेसफुल कुछ 27% बनते हैं। लेकिन एक एनालिसिस के मुताबिक जो EDI की इन जो भी एंटरप्राइजेस हमने स्टार्ट किए थे, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस उस चीज की हुई थी, तो कुछ 77% 78% को सक्सेसफुल ही पाया गया। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर हर्डल्स व्हिच वाज देयर इन द क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस वाज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो वो प्रॉब्लम लेटर ऑन सॉल्व हो गई एंड EDI इंप्लीमेंटेड मेनी स्कीम्स है हमारे पास अभी अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस स्कीम्स। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने जो सेक्टर भी चुना है, हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, और जो J&K की इकोनॉमी है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है वो ये है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो 20% कंट्रीब्यूट करता है, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हमारा 7%, टूरिज्म 8%, हैंडीक्राफ्ट्स 2.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 26%, सर्विसेज सेक्टर 36.5%। सो अगर हम नॉर्मली जो भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड एक्टिविटीज हम वी कॉल इट एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो वो अगर हम देखें दोनों मिला के कुछ 27%, which is a major check। और उसी फील्ड में आप लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस दैट हमारे पास इसका जो बेसिक जो चीजें इसके लिए हमारे पास जरूरत लगती है वो भी हमारे पास है, इसका मार्केट भी हमारे पास अवेलेबल है, इसके पास जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम भी अवेलेबल है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो लेट्स मूव ऑन। अब EDI जो आपका सेक्टर है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इस सेक्टर में क्या क्या हेल्प आपको कर सकता है? वन, जो हम करते हैं we conduct EDPs, Entrepreneurship Development Programs। जैसे आप लोगों ने आज एक already you are in an advanced management development program, इसी तरह से इस सेक्टर के लिए हम EDPs चलाते हैं, Entrepreneurship Development Programs हम चलाते हैं। That is kind of an extended program, थोड़ा सा 21 दिनों का वो प्रोग्राम होता है, जहाँ पे जैसे स्क्वास ने आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए थे, आपको फील्ड विजिट्स कराए थे। सिमिलरली थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक प्रोग्राम होता है JK EDI का, जहां पे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है, आप लोगों को टेक्निकल इनपुट्स भी मिलते हैं, फाइनेंशियल इनपुट्स भी मिलते हैं। दैट इज व्हाट वी डू। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, यू कैन एनरोल इन योर डिस्ट्रिक्ट्स जहां से भी आप हैं, एंड यू कैन अंडरगो दीज EDPs। इसी तरह से देन जो हमने बात की थी फाइनेंशियल असिस्टेंस पे मैं आ जाता हूं, ठीक है। इसी तरह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, व्हेन वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसको मार्केट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये कहां बेचें, ये किसको बेचें,
So EDI has been conducting and has been facilitating people to participate in exhibitions या बाकी जो buyer seller meets होते हैं across the country. So if you are facing any such problem जहाँ पे आपका produce है and you don't know whom to sell, where to sell, the role of EDI comes in. You can contact any of your district centers, they will facilitate. In fact, अभी जो हमारा modus operandi है, there is another organization called JKTPO, Jammu Kashmir Trade Promotion Organization, right? उनका और हमारा JKEDI का we have a same director also. So हम लोग वो सिनर्जी यूज करते हैं जहां पे हम उनकी फैसिलिटीज उनकी जो रीच है दैट इज पैन इंडिया, बहुत ज्यादा रीच है उनकी, और हमारी जो ऑलमोस्ट हमारी भी रीच रही है, तो उनकी एक सिनर्जी क्रिएट करके एक बड़ा सा मार्केट हम अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोवाइड कर पाते हैं. एंड दैट इज वेरी प्रोडक्शन बहुत इट्स इजी, ठीक है. कल्टीवेशन इज इजी, वेयर टू सेल, कल को वो मार्केट में जाना है ना, नहीं गया तो आपके एफर्ट्स दे गॉन, राइट. सो दैट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय EDI. अच्छा, इसी तरह से देयर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स, उस पे भी मैं आ जाता हूं. देयर इज वन थिंग कॉल्ड J&K स्टार्टअप पॉलिसी, राइट. एंड उससे पहले आई वांट टू शेयर विद यू, आप में से SCOST के स्टूडेंट्स कितने रहे हैं? Okay, that's great. Okay. Last time in Ganderbal, we conducted a Ganderbal Entrepreneurship Festival. उसमें एक चैलेंज हम लोगों ने रखा था, which was called Idea Pitching Challenge. Idea Pitching Challenge क्या था कि उसमें अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज थे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे, इनोवेटिव कोई भी टेक्नोलॉजी थी, so you could come into that program and then there were investors available there जो आपके उन आइडियाज, इनोवेशंस में एंजल इन्वेस्टिंग उनने की थी. और we were able to get 125 participation total हमारे पास थी 125, and out of those 125, 89 were from SCOST. I was amazed, literally I was amazed with the kind of ma'am जो innovations लेके वो बच्चे आए थे, with the kind of ideas, और in fact जो top 3 थे, top 3 prizes में से 2 prizes SCOST ने ले लिए, and those prizes were given by Honorable LG of UT. उसके बाद 10 out of those final जो हमने session किया था, 30 को हमने shortlist किया था, 10 were offered angel investment also. I don't know फिर उनने avail की या नहीं की. In fact, one student from here जिसका idea ये था कि walnut butter उसका आइडिया था. हाँ, तो she was offered an order आप कि 2 क्विंटल आप दे दीजिए मैडम in 1 month, which she could not do unfortunately. ठीक है, तो मार्केट आपके पास अवेलेबल है, लिंकेज आपके पास अवेलेबल है, तो वेट आपका किया जा रहा है मार्केट में. बट बीच में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर आ जाता है इशू, बिकॉज इफ वी कैन नॉट मीट द मार्केट डिमांड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, तो वो उसके लिए भी वैसे हमने इनको बोला है कि कुछ और भी एवेन्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हेल्प करती है टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मतलब स्टेप वाइज इनको बोला स्टेप वाइज अगर मैं पहला स्टेप मैं आपको यहीं पे ऑफर कर देता हूँ. In addition to being district nodal officer for JKEDI, I am also nodal officer for Vikalp. Vikalp is venture incubation and knowledge launchpad and application. ठीक है, ऐसा है. This is a center in district Ganderbal, which is basically an incubation center. And in addition to incubation, we also provide like technological inputs also. So that is ये center जो है, ये center जो है, this is in Government Degree College Ganderbal. ठीक है. So वहाँ पे what I can offer you right away is that we have 8 workstations available there. अभी हमारे पास कोई नहीं आया है उसमें से. So if you want facilities like office space, if you want facilities like internet connectivity, जो भी technology आपके पास है, आप आइए हमारे पास.
we are in the process of procuring technology for our incubators. If any of you want that, you can contact us. We can provide you that. Any That can be eligibility for that? The only eligibility is that a person needs to be from district Ganderbal, or at least a partner should be from Ganderbal. That is, sorry, They are all not from Ganderbal. this is for Ganderbal only. जो मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ, और जो J&K स्टार्टअप पॉलिसी उस पे मैं अभी आता हूँ, उसमें ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी फॉर एवरीवन बट एट आवर पामपोर कैंपस. गांदरबल से आप में से जितने भी हैं या गांदरबल में बिजनेस पार्टनर्स आपके जो गांदरबल से हैं, they can come to us. They can come. Those three are in cultivation. Right. They are from Ganderbal, so they might need your help. Yeah. आप आ सकते हैं वहाँ. If we not give, मतलब receive this space, but जी. at least in a kind of kind of sensitization from the. Yeah, that can be done. That can be done. In fact, for past couple of months, what we have been doing is हम लोग सिर्फ networking कर रहे थे कि इंडिया में जहाँ पे भी जो भी expertise available है, we are now connected with them. और जो भी expertise की आपको ज़रूरत है, we can just connect you with all of them. ठीक है, वो किया जा सकता है. ठीक है. अब मैं आता हूँ hardcore जो finances हैं. जहाँ पे आपको अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, राइट? सो मैं उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेता हूँ यहाँ पे. सो हिस्टोरिकली ईडीआई ये 3 स्कीमें चला रहा था. अभी नहीं चला रहा है, लेकिन ये स्कीमें चल रही है. कहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा. नंबर 1 इज सीड कैपिटल फंड स्कीम. अंडर सीड कैपिटल फंड स्कीम मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years. फाइन. मिनिमम यू शुड बी 10+2. ओके. यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ J&K. ये 3 एलिजिबिलिटीज आपने फुलफिल की. उसके बाद आपके पास एक वायबल बिजनेस आइडिया होना चाहिए. वायबल बिजनेस आइडिया तो आपके पास है. डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन, अगर आप 10+2 है, you can get money up to 12 lakh rupees, जिसमें 4 lakh rupees is seed money, which is non-refundable. You can call it a kind of subsidy. You don't have to pay it back, right? आप समझे मेरी बात? बाकी बचता है कितना? 8 लाख रुपए. ये 8 लाख रुपीस आपको JK बैंक से लोन मिलेगा. किस रेट पे? थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट पे. There is a concept called MCLR. MCLR is the basic rate which a bank offers. MCLR plus 0.5%. So if MCLR is 9%, 9.5% आपको पे करना है. नॉर्मली अगर आप बैंक के पास जाएंगे, so you get MCLR plus 3-4%. ठीक है. इसमें भी 2-2.5% का आपको प्रोविजन रिबेट आपको मिल जाता है. इसी तरह से if you are a graduate or post graduate but non professional, you get money up to 18 lakh rupees, sorry, up to 20 lakh rupees, जिसमें again 35% of which is a seed capital, which is seed capital. You get it free of cost. Rest money from J&K Bank as loan, MCLR plus 0.5%. So if you are professionals, which I suppose most of you are having professional degrees, you can get money up to 30 lakh rupees, out of which around 10 lakh rupees you can get as seed money. Seed money, that's free of cost. You don't have to ever pay it back. Rest amount from J&K Bank, MCLR plus 0.5%. Is that clear? Is that clear? Okay. So let's move on to the next scheme. But what is the procedure, sir, if we are going towards the bank, JK Bank, for the particular amount of? I'll talk about that. Let me complete this. Okay. So number 2 scheme was youth startup loan scheme. Under youth startup loan scheme, जो भी एलिजिबिलिटी सीड कैपिटल फंड स्कीम की है, वही इसकी भी है. 18 to 40 years of age, 10+2 minimum qualification and a domicile of J&K. Okay. So इसमें आपको some of the people face problems with bank. बैंक में हमारे पास लोग आते हैं कि जनाब नहीं देते हैं, तंग करते हैं, बाकी चीजें. So this scheme is run in off banking mode. ये इंस्टीट्यूशन खुद ही पैसा देता है और रिकवर भी खुद ही कर लेता है. अगेन डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन. अगर आप 12वीं पास है, 10+2 है, तो 12 लाख रुपए तक आपको पैसा मिलता है एट 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट.
at 6% simple rate of interest. ये पैसा जो है आपको 5.5 साल में वापस करना है in quarterly installments. 3 महीने के बाद आपको ये वापस करना है. And you will also get 6 months moratorium period. Moratorium period का मतलब ये होता है वो period कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, so you are not expected to earn profits the next day. There is some period जहाँ पे आपका बिजनेस एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो वहां से प्रॉफिट देना चाहिए. So we provide you moratorium period of 6 months. 6 महीने तक आप जनाब कर लीजिए बिजनेस. 6 महीने तक आप सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दीजिए. 3 महीने के बाद ओनली इंटरेस्ट. एंड पहला जो फुल फ्लेज्ड इंस्टॉलमेंट है वो आप 9वें महीने में दे दीजिए इन 9th month. ठीक है. 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बात कर रहा हूं. सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रिड्यूसिंग रेट. उसका ये मतलब होता है कि इसकी इफेक्टिव रेट जब देखी जाती है दिस इज अराउंड 3%. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए ले लेते हैं, ये 1 लाख रुपए आपको 5.5 साल में वापस करना है और टोटल इंटरेस्ट इसका 17 से 18,000 बनता है इफ यू डू योर रेगुलर रिपेमेंट्स. अगर आप इरेगुलर रिपेमेंट्स करते हैं देन आई एम नॉट श्योर कि कितना देना पड़े. रेगुलर रिपेमेंट्स अगर आप करते हैं तो 17 से 19,000 आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है पर लाख. दिस इज द चीपेस्ट मनी अवेलेबल अंडर एनी स्कीम. ठीक है. इसी तरह से तीसरी जो स्कीम है, देयर इज अ कॉर्पोरेशन, देयर इज अ मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. आप में से जितने भी आई एम श्योर आप में से सब माइनॉरिटी में ही आते हैं. Minority comprises of 5 religions: Muslims, Sikhs, Parsis, Buddhists and Christians. ये 5 religions जो आते हैं ये minorities में आते हैं. Ministry of Minority Affairs through a corporation called NMDFC, National Minorities Development and Finance Corporations, वो schemes चलाती हैं. यहाँ हमारे J&K में भी चलती है. We have 3 SCAs here. 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये स्कीम्स चलती है. One is Women's Development Corporation, then there is SC/ST Board, and then there is SFI, State Finance Corporation. इनके थ्रू ये चलती है. So there is one scheme जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, which is term loan scheme. Term loan scheme में if you belong to minority and if your annual income is less than 1,20,000 if you are in rural areas, if you live in rural areas, and if your income, family income per year is less than 8 lakh if you live in urban areas. तो इसमें आपको up to 30 lakh फाइनेंस मिल जाता है again at 6% rate of interest. 6% पे मिल जाता है which you have to pay in 5.5 years. with the business side. Quarterly repayment में आपको ये repay करना है. राइट आप समझे मेरी बात. सो दीज आर द 3 स्कीम्स जिनके बारे में मैं बात की. अब आप सर आपका क्वेश्चन था कि हाउ डू यू अप्लाई फॉर दीज स्कीम्स, राइट? व्हाट वाज द क्वेश्चन? Question was like when we approach towards the bank, and normal way what we have observed from last couple of years is that after approaching the bank they are asking us related to the particular project and items. Say the criteria like I don't remember the thing. Motivation, and mortgage plus Ratan. we can say the Guarantee. government. पहली स्कीम के बारे में मैं बात करूंगा. गवर्नमेंट गारंटर इज नॉट required for that scheme. Seed capital fund scheme में कोई government guarantor की जरूरत नहीं है. In fact, there is also a concept which all of you should understand and learn. And जब भी आप बैंक पे जाओगे, you should talk about it. There is an institution called CGTMSE. Have you heard about that? CGTMSE. CGTMSE is a trust. इंडिया में एक ट्रस्ट है. गारंटी का इशू पूरे बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. सो देयर इज अ ट्रस्ट CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो भी इसकी फुल फॉर्म है. ये क्या करते हैं? फॉर अ मिनिमल फी दे प्रोवाइड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ यू. फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट का 10 लाख रुपए है, सो दे विल टेक अ गारंटी फी ऑफ 0.25%, or you don't have to provide any guarantors.
ठीक है, सो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है. सो व्हेनेवर यू अप्रोच एनी बैंकर यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ दिस CGT MSc. सो दिस इज one of the solutions for that. And regarding mortgage, जी. CGT MSc अगर हम उनको बताएंगे उसके लिए what are the criteria for that? You don't have to do anything, ठीक है. आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो DPR है, आपका जो फाइनेंसिंग है, they will only take credit guarantee fee from you and rest of the formalities will be done by the bank. ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है. आपको और कुछ नहीं करना है. कल को अगर आप डिफॉल्टर बनते हैं या क्रॉनिक डिफॉल्टर बनते हैं, they will get settlement from, but it doesn't give you a license to become a defaulter. ठीक है, so it doesn't give you a license. तो वो उनके भी अपना मैकेनिज्म है उनका भी. जब हम बैंक्स पे जाते हैं जी, जैसे कि 10 लाख का था सभी जो था, हाँ, अब तो थोड़ा सा लोगों में भी आ गया है कि नॉलेज में कि 10 लाख तक कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करना है. एग्जैक्टली. पहले एंड मॉर्गेज भी नहीं है. यस, मॉर्गेज. अब फ्रॉम 10 लाख से अब वो एक तो गारंटर मांगते हैं, दूसरा मॉर्गेज भी मांगते हैं. जी, ये जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना, हमारे पास एक आइडिया होता है, वो ताज़ा आइडिया होता है, उस पर काम करना भी बहुत इजी हो जाता है फिर. लेकिन जब आप हर्डल्स आगे क्रिएट हो जाती है, हर्डल्स हो जाती हैं, तो वो आइडिया ना वो कूल डाउन हो जाता है फिर. मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं. हो जाता है. थोड़ा सा Let him explain, थोड़ा सा then मैं we आपको can एक्सप्लेन interact. करूं ये. आई एम हैप्पी यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है, देखिए दो चीजें हैं. वन, गारंटी यू टॉक्ड अबाउट, उसका सोल्यूशन है CGT MSc. ठीक है, देखिए बैंक का जो पैसा है या इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, इट्स पब्लिक मनी. It's mandatory for banks, it's mandatory for public institutions, जो भी lending institutions है, वो public money save करना, वो safeguard करना भी एक mechanism है. ऐसा ही नहीं है कि पैसे ऐसे ही फेंके जा सकते हैं. One, you talked about guarantee, ठीक है, उसका solution है CGT MSc. Second, जहाँ पे mortgage की जरूरत है, you have to understand what mortgage basically is. हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना मॉर्गेज की हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे पास अगर जमीन है, मेरे पास अगर कोई बिल्डिंग है, ये मैं किसके नाम कर देता हूँ, बैंक के नाम. बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट फंक्शन लाइक दैट. मॉर्गेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि द एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस से जो एसेट्स क्रिएट होते हैं, दे आर मॉर्गेज. वो बैंक अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो दे कैन ओवरटेक वो एसेट्स एंड दे कैन सेल इट. प्रोवाइड, अगर आप एक दियानतदार बिजनेसमैन हैं, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. ऐसा नहीं है कि आप लैंड उनके नाम कर देते हैं. वो तो तब हो जाएगा ना जब हम बिजनेस में आ जाएंगे जी, तब. हाँ. पहले ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं. पहले ये हर्डल्स नहीं है सर. यहाँ तक नहीं ठीक रहता है सर. यहाँ जी. तक जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब बिजनेस का सेटअप ऐसा है और बैंक तक जा सकते हैं, ठीक है. लेकिन बैंक जो ही हम अप्रोच बैंक तक जाते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स इशू हो जाते हैं. So if you are नॉर्मली not, ठीक है, नॉर्मली ये ठीक है, मतलब बोलने में भी ठीक है, ऐसे करने में भी ठीक है. then there is a solution. सॉरी सर, वन सेकंड. हाँ. So जो ही बैंक के पास जाते हैं, because I have the experience of it. उन्होंने 7 लाख के लिए मुझे बोला मुझे 2 गारंटर चाहिए थे. जी. मतलब Then there are off banking mode things ना. Off banking. Don't go to the bank. ये बोल रहे हैं ना 10 लाख के लिए आप है ही नहीं. नहीं, यहाँ पे क्या, या तो उनके पास ये नॉलेज नहीं है, और मैं ये नॉलेज है उनके पास. देखिए मैं भी अगर बैंक मैनेजर होऊंगा ना, आप सुनिए मेरी बात, अगर मैं भी बैंक मैनेजर होऊंगा ना, मैं अगर 10 पैसे भी दूंगा, I'll push कि आप मुझे गारंटर दे दीजिए. हाँ, so that they This want to is- secure their money. This is now it depends on you. आप समझिए, आप सुनिए मेरी बात. It depends on you कि आप कितने informed हैं और कितना अच्छे से आप negotiate कर पाते हैं बैंक के साथ. ठीक है? कुछ नहीं चलता. There is a mechanism in place which most people don't use. I'm telling you this कि मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर था बारामूला में. ठीक है? बारामूला, आप कहाँ से हैं भाई? बारामूला से. बारामूला में था. ये बारामूला का है. बारामूला में आप ओके I कहाँ have से? been in your office. अच्छा, इन बारामूला. टंगमर्ग. Yes, Tangmar. हाँ, that's why I thought. हमने कुंजर में एक बैच किया था, राइट? ठीक है. So बारामूला में ऑफ एंड ऑन जो हमारी ये स्कीम तब चल रही थी, सीड कैपिटल फंड स्कीम, सिंस इसमें हमारा MOU है विद JK बैंक. सो ऑफ एंड ऑन हमारे पास आते थे ऐसे लोग कि जनाब ये रिमर्स मकान क्या गारंटी, ये मॉर्गेज मांगते हैं. बट देन
these things are cleared by the policy only, ठीक है। अब उसका ये मैकेनिज्म होता है अंडर दिस स्कीम, अगर मैं आपको बता दूं, इसका ये मैकेनिज्म है कि अंडर विदिन 60 days या तो बैंक मैनेजर को ये डिसबर्स करना है या सारा पैसा, और he has to return the case with some valid reason. अब वैलिड रीजन जब तक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नहीं वैलिडेट करेगा तब तक तो वो केस वापस जा नहीं सकता है, ठीक है। अब जहां पे भी हमें ये प्रॉब्लम होती थी, देयर वाज अ मैकेनिज्म, बैंक में आप लोगों ने सुना होगा, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड LDM, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है। सो जहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ही इज द एप्रोप्रिएट पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं करता आपका प्रॉब्लम सॉल्व, देन देयर इज द जोनल मैनेजर। अगर वो भी नहीं करता, देयर इज RBI वेबसाइट इवन, जहां पे आप यू कैन लॉज योर कंप्लेंट, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, Be informed. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना हेड ऑन ले लेते हैं, कितनी ठीक है। हद तक आप अपने राइट्स ना वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। मैंने आपको बोला ना, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं भी बैंक मैनेजर होऊंगा, आई विल आल्सो पुश, अगर मुझे 10 रुपए भी देने होंगे, मैं पुश करूंगा जनाब आप गारंटर दे दीजिए, ठीक है, बिकॉज कल को मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। बट इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू मैकेनिज्म, आप मेरे साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे मुझे गारंटर मांग रहे हो, जबकि आपकी पॉलिसी ऐसा कुछ बोलती ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बैंकिंग सेटअप, देयर इज ऑफ बैंकिंग मोड आल्सो, which is said कि यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है या टर्म लोन स्कीम है, आप वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। So they have to apply through the appropriate scheme, filling the form under the that particular scheme, जी। so that it can be processed under that particular scheme only, हाँ, ठीक है। Okay. So now मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्कीम्स जो है ये JKEDI चला रहा था, अब नहीं चलाता, अब ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट चलाता है पहली दो स्कीम्स, सीड कैपिटल फंड स्कीम एंड यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। एंड थर्ड स्कीम जो है NMDFC की स्कीम, मैंने आपको बोला कि 3 SCAs हमारे पास है, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज फॉर NMDFC, फॉर गर्ल्स, फॉर लेडीज, ठीक है। वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द एप्रोप्रिएट प्लेस टू गो, फॉर बॉयज, फॉर मेल्स, ठीक है। हमारे पास SFC है, और if anyone falls under SC/ST category, there is SC/ST board, वो उनको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। Even there is a software of NMDFC which is called Milan software, MILAN. आप ये जो प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को बाईपास करने के लिए you can directly apply on that software. वो आपकी एप्लीकेशन, आपके रिलेवेंट जो SCA होगी यहाँ पे, वो उन तक जाएगी, एंड जो भी प्रॉब्लम्स वो कम हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिलन, MILAN, यू कैन सर्च इन गूगल में, आप देख सकते हैं ये MILAN, या NMDFC की वेबसाइट है nmdfc.org, उस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ ये एक और फैसिलिटी अवेलेबल है, ये JKEDI की ओर से ही फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड J&K स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप पॉलिसी में अगर आपके पास कोई इनोवेटिव चीज है, या आपके पास कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप हम बाय द वे किसको बोलते हैं? स्टार्टअप कोई अगर एक कंपनी आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है जो पिछले 7 साल से कम जिसकी रजिस्ट्रेशन है, मतलब 7 साल से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ एक्सीड नहीं हुआ है, 25 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। आई एम श्योर कि आप में से अभी ये किसी ने अचीव नहीं किया होगा, आप इसमें भी आते हैं। इसी तरह से ये जो आपकी कंपनी है या सेटअप है, ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनाया गया है। कभी कभी होता है ना, बड़ी कंपनी है उसको छोटी छोटी 2-4 कंपनियां बना के, ठीक है। इसी तरह से ये कोई एग्जिस्टिंग कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है। ये
इनोवेशन के लिए काम कर रही है आपकी कंपनी, या किसी ऐसे मतलब बहुत ही जिसमें मार्केट पोटेंशियल हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हो, ठीक है, और ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, या कम से कम 50% जो एम्प्लॉय है ये J&K के होने चाहिए। इन लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो बेनिफिट्स जो मैं अभी विकल्प की बात कर रहा था फॉर गांधरबल, दोज फैसिलिटीज दे कैन गेट ऑफिस स्पेस, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस स्पेस, ठीक है, मंथली अलाउंस इस पॉलिसी में कुछ 12,000 रुपए है, जब तक आपका बिजनेस ना प्रैक्टिकल मतलब मार्केट रेडी स्टेज तक आ जाता है तब तक आपको मंथली अलाउंस मिलेंगे, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको तो जिंदगी भी चलानी है ना, ठीक है, सो उसके लिए अलाउंस आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट रिसर्च या डेवलपमेंट में जो भी पैसा आपको जरूरत पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए, वो पैसा आपको इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई पेटेंट फाइल करना है, इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करना है, दैट फाइलिंग कॉस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। इसी तरह से आपको टैक्स एग्जम्पशंस भी इस पॉलिसी के तहत मिलती है। इसमें आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन द सेंस कि सरकार जो भी परचेजिंग करती है दैट इज डन थ्रू जेम पोर्टल, राइट, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जेम पोर्टल, सो यू विल गेट एक्सेस टू दैट पोर्टल ऑल्सो, ठीक है, इन द सेंस कि यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स थ्रू दैट मीडियम, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सपोजर विजिट्स, वर्कशॉप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे आप अभी बता रहे थे, एंड फाइनेंसिंग तो खैर बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप में से कोई भी इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड JK Startup. You need to register yourself on that portal and things will be taken care of from there, ठीक है, JK Startup, fine। अच्छा, okay, मैम एक वो प्रेजेंटेशन है, rather there is a compendium. I am going to share with you compendium। मैम आपके साथ आई एम श्योर कि आप लोगों के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे। Recently we have created this compendium of rather all the schemes जो यहाँ UT में चल रही है ना, सारी स्कीम्स जो है हमने इसका एक कंपेंडियम बनाया हुआ है, सो यू कैन, अब इतना तो अभी बोला नहीं जा सकता, ठीक है, हर किसी डिपार्टमेंट में जो जो स्कीम्स चल रही हैं आपसे रिलेवेंट जो भी चीजें हैं, यू कैन गो थ्रू इट, एंड इसमें सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। सो थैंक यू, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है And because this is our last day of the session, and this was much required. Okay. Because those who are actually thinking of or just moving towards the best word which Mr. Ehsan that day said, startups and step-ups. Right. Some are in the startup mode, some are in the step-up mode as well. Right. So in both the cases, they require this entrepreneurship skills and all that. So my question to you will be, is there any program coming up for just gaining those entrepreneurial skills, leadership skills? Yeah, in fact, ma'am, हम लोग Sense is a US based company जिन्हें एक research based training program, training module develop किया है। वो training module उन्होंने कुछ 22 developing countries, India is a developing country, 22 developing countries में they have developed a training program which is a simulation based. Simulation में क्या होता है? We create the atmosphere of business in the classroom, ठीक है, और वहाँ पे जो गलतियां आप रियल लाइफ में करने जा रहे हो वो गलतियां आपसे हम कराते हैं कहाँ पे, क्लासरूम में ही, ताकि आप नुकसान कहाँ पे करो, क्लासरूम में करो, वहाँ बाहर ना करो, वहाँ पे रियल मनी विल बी इन्वॉल्व, यहाँ पे ओनली आर्टिफिशियल मनी विल बी इन्वॉल्व। वी हैड प्लान, बट जो मुझे यहाँ समझ आया कि देयर वाज पॉसिटी ऑफ टाइम, सो वी कुडंट डू दैट, बट जो हमारा ये हौसला का प्रोग्राम है उसमें वो मॉड्यूल भी है। Yeah, we can do that also for male candidates. We are conducting a program in Ganderbal at Vikalp, ठीक है, उसमें सारे जो इनपुट्स हैं बिजनेस के रिलेटेड जो हमारे पास 7 P's होते हैं, वो 7 P's आपको समझने को मिलेंगे। देन
बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है टू बी एन एंटरप्रेन्योर लीडरशिप स्किल्स है या बाकी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बाकी सारी, यू विल गेट ऑल दोज इनपुट्स. इट्स नॉट ईजी कि 1 घंटे में वो सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा. बिकॉज अगर हम एक नॉर्मल सिमुलेशन सेशन भी करते हैं मैम, इट टेक्स 4 hours. और बेसिक वाली सिमुलेशन में देयर आर 4 levels ऑफ सिमुलेशन. जो चौथी वाली सिमुलेशन है दैट टेक्स 5 to 6 hours. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड यू कैन गेट एनरोल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स ऑफ JKEDA और वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत यूजफुल. So it's available in all the districts? It's available in all the districts of So if JNK. you people are ready for that, you can enroll, you can give us your names. We can then coordinate you with the respective districts. That's how we can do it like that. So because that is much required. अभी क्या है कि अभी you are within the ट्रेनिंग, अभी आपके स्पिरिट्स हाई ही रहेंगे, अभी कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होने लगेंगे बिकॉज यू आर आउट ऑफ इट, वी नो इट. बट in order to tap your brain and all that to get back to this track, you need continuous push. तो इसलिए अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, तो बी कनेक्टेड. थैंक यू सो मच वसीम साहब to give us your precious moments and precious time for sharing, because you are also young, they are also young, तो they need that. इनको बहुत brainstorming चली है इन 6 दिन. You are in the group as well. So we are continuously connecting them. If some resource person is not available in person, we are connecting through online mode, but we are connecting. I can understand the problem also, because मैं जब यूनिवर्सिटी से निकला था ना, for 1 year I was unemployed, ठीक है, for 1 year, and उस 1 साल में मेरे भी जहन में ये चल रहा था. I was on the verge of starting यूनिट, ये जो है हमारा इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूनिट, ठीक है. Unfortunately I got a job. Unfortunately I got a job. Seriously. My next training is on eco-friendly packaging. Okay. I am starting with next eco-friendly packaging. Actually, this startup has been already. We were supposed to, set same kind of, idea before a time. Yeah. But unfortunately, Much required. Much required. Exactly.